चलिए, okay, screen is visible to all of you. Yes, is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Chaliye, let's start then. So before the leaves, we were talking about second unit, and that unit comprises of frequency modulation. Okay. Now frequency modulation, we all know what is frequency modulation. When we are modulating the frequency of my carrier signal with respect to the instantaneous value of my message signal, then that is known as frequency modulation, right? Before that, we should know that what is the band of FM. Likewise, we should also know what is the band of amplitude modulation, right? Because we have AM radio also. You must have seen that जब आप गाड़ी में या कहीं पे FM को scan करते हैं, तो there is an option of AM also. So that bandwidth lies between 540 to 1600 kilohertz. ठीक है? And total band of AM wave is 10 kilohertz. But the total band of FM is 200 kilohertz. ठीक है? I told you that bandwidth of FM is very high in comparison to AM. ठीक है? But we are considering this because FM is a better technique. ठीक है? तो AM की जो band होता है AM radio का, that is 540 to 1600 kilohertz, and there are 106 possible bands, channels, or you can say. And in FM, we have 88.1 to 108.1 megahertz channels, in which there are 100 possible bands. ये channels हम generally सुनते हैं. If I talk about Ghaziabad, then we have 90.4, 91.1, 92.7, 93.5, 94.3, 95, 98.3, 99 point something, and many others. So these are all the channels that we have used for broadcasting the audio signals. Okay. Now, what is actually happening in AM or FM? See, in the case of AM, what happened? हमने sound waves को लिया था, उसको एक microphone और speaker की device में input कराया. ठीक है? Now, in microphone, we are providing the audio frequency, which is lower in range. Then we have a modulator. The purpose of modulator, we all know. We have studied that why do we need modulation for long distance communication, for height of antenna, and many other reasons. Right? So that thing will go to the modulator. Also, we will have a radio frequency signal, which is generated with the help of a carrier oscillator. These two signals in a device get modulated with each other and then is ready to transmit with the help of antenna. Now, whenever we are transmitting the data is traveling in the medium. Now, if I consider that the medium is a wireless medium, then we have different things. We have towers, we have clouds, we have rains, thunderstorms, trees, vehicle noise, many other things. Fine. And out of all these noise, the signal is transmitting here and is moving towards the AM receiver. So this may be affected with the noise. And this is the only reason noise immunity is the only beneficial reason that we are moving from AM to FM. Because I already told you that noise deteriorates the amplitude. Okay? And in the case of AM, information is present in amplitude. But in the case of FM, information कहाँ होती है? Information is in frequency component. ठीक है, तो अगर amplitude हमारा deteriorate होता भी है, जो कि ideally constant होना चाहिए, but अगर वो deteriorate होता भी है, तो as a receiver मुझे पता है कि वहां पे मुझे amplitude से कुछ करना ही नहीं, मुझे एक constant amplitude receive करना है, बाकी जो spikes आ रही हैं उन सबको ignore करना. Important is कि मेरी frequency retrieved होनी चाहिए. ठीक?
For that we use devices called limiters that limits the frequency deviations. ठीक है? So the difference between AM and FM I already told you, same is written up to here. Frequency modulation क्या होता है मैंने आपको बताया. हाँ, frequency modulation किसने बनाया था, मतलब किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था. The scientist was named as Edwin Howard Armstrong. ठीक है? Who uses frequency modulation to provide high fidelity sound over broadcast radio. High fidelity मतलब प्रॉपर साउंड. जैसे आपने देखा होगा जब आप ट्यून करते हैं अपने एफएम चैनल्स को और अगर हम मोड को चेंज करें तो एएम लग जाता है और एएम में आपको हमेशा एक हिस साउंड आती है, एक डिस्टर्बेंस रहती है. लेकिन एफएम में वो डिस्टर्बेंसेस नहीं होती हैं अनटिल अनलेस आपका बैकग्राउंड से ही नॉइस में कुछ दिक्कत हो. ठीक है? सो जो हाई फिडेलिटी साउंड ओवर ब्रॉडकास्ट रेडियो है वो एफएम की वजह से आया था और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने. ठीक है? Now this is the process that we already know. It is a non-linear process and it is more difficult in comparison to AM. But still we are using it because it is providing noise immunity. ठीक है? This is how FM signal looks like. This is the representation of the signal. MT is equals to AM cos 2 pi FMT, or you can also write it as AM cos omega MT. Whatever you feel better. ये angular frequency होती है और ये normal frequency होती है. Then modulated signal हमें already पता है क्या होता है. AC cos of omega CT plus यहाँ पे क्या होता है? MF. MF क्या होता है? मॉड्यूलेशन फैक्टर. मैंने आपको बताया था जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स AM के केस में उसे म्यू कहा जाता है, वैसे ही FM के केस में मॉड्यूलेशन फैक्टर को बीटा कहा जाता है. सो वही यहाँ पे लिखा है. ठीक है? AC cos 2 pi FCT plus बीटा sin 2 pi FMT. बीटा क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स, which is the equivalent to KF into AT या फिर KF into maximum amplitude of AT upon angle of AT. This is what? This is modulation factor which is equivalent to beta. ठीक है? और AM क्या है? AT का एम्पलीट्यूड. तो मैंने जब पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था कि जो मेरा FM का टाइप होता है, be it wide band or narrow band, it is dependent upon this product. अगर आपका KF into AT का प्रोडक्ट much less than 1 है, then my FM is narrow band. और अगर KF into AT का प्रोडक्ट much greater than 1 है, then that is called as wide band FM. ठीक है? वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है. अच्छा, अब नैरो बैंड एफएम हम कहाँ यूज कर सकते हैं? बिकॉज नैरो बैंड एफएम एक टाइप ऑफ AM ही होता है बट with the properties of frequency modulation, right? So इसमें क्या है? पुलिस वायरलेस में यूज हो सकता है ये, जहाँ पे वॉकी टॉकीज यूज होते हैं. एम्बुलेंसेज में अगेन इन द केस ऑफ वॉकी टॉकीज. टैक्सी कैब्स में शॉर्ट रेंज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी शिप टू सोर्स कम्युनिकेशन. ठीक है? जैसे जब हमारी शिप सोर्स को मतलब अपने जो उसका स्टेशन होता है उसको लीव कर रही होती है, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होते हैं कि भाई हाँ चलो अब आप ये वाला पैनल खोल दीजिए, इस पैनल को बंद कर दीजिए, ये सब हमारे वॉकी टॉकीज के थ्रू होते हैं. एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ नैरो बैंड एफएम. ठीक है? एंड डिफेंस में भी जो हमारे वॉकी टॉकीज यूज होते हैं वो नैरो बैंड एफएम यूज करते हैं. वाइड बैंड एफएम आपके कहाँ यूज करे जा सकते हैं? एक सेकेंड. हाँ, वाइड बैंड एफएम हमारा किसी भी जहां पे आपको मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज चाहिए होंगी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी रेडियो, बेटर ब्रॉडकास्टिंग चाहिए होगी, वहां पे आप वाइड बैंड एफएम का यूज करेंगे. ठीक है? सो दिस वाज अ स्मॉल रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. देन आफ्टर दैट आई टोल्ड यू कि नैरो बैंड एफएम का ब्लॉक क्या होता है, कैसे आप नैरो बैंड एफएम कंस्ट्रक्ट करते हो. सिंपल सी इक्वेशन होती है, एक बार देख लेते हैं. This was the FM equation. When we expanded the equation of FM, we got this equation. ST of FM is equals to A cos omega CT minus A KF into AT sin omega CT minus A KF square
into a square t upon 2 factorial cos omega ct and so on. So in this equation, when we kept the value of kf at less than 1, then we are left with only these two terms. One is the carrier and another is the amplitude modulated wave. तो जब हमारे पास सिर्फ ये होता है, that is called as narrow band FM. और जब हम कंडीशन पुट करते हैं kf into at much greater than 1, then we are left with this complete equation, which is called as wide band FM. ठीक, narrow band FM का ब्लॉक डायग्राम हम समझ चुके थे. Then I told you about expression of narrow band FM. इसमें मैंने अपने मैसेज सिग्नल को सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल किया और एक इक्वेशन निकाली, जिससे मुझे इक्वेशन मिली कि kf इंटू वीएम अपॉन ओमेगा एम मॉड्यूलेशन फैक्टर होता है. ठीक है, चलिए उसके बाद आई टॉक्ड अबाउट वाइड बैंड एफएम. वाइड बैंड एफएम में कैसे हम बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते हैं, दिस वी टॉक्ड अपॉन. मैंने आपको बताया था कि हम एक पायोनियर्स मेथड से अप्रोक्सीमेशन करेंगे अपने मैसेज सिग्नल को, जो कि इनफाइनाइट है, उसको बैंड लिमिटेड कर देंगे बी हर्ट्ज पे. ठीक है, फिर उसको सैंपल करेंगे. सैंपल करने के बाद एक सेल ले लेंगे, इस पूरे सिग्नल में से एक पर्टिकुलर एमटी के सेल ले लेंगे और इस सेल पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करके अज्यूम करेंगे कि अब जो यहां हो रहा है वही पूरे सिग्नल में होगा. ठीक है, तो इसको करने के बाद हमने जो बैंडविड्थ निकाला था वाइड बैंड एफएम का, दैट वाज इक्वल टू this one. Bandwidth was equivalent to twice of delta f plus twice b. अब डेल्टा एफ क्या होता है? डेल्टा एफ हमें पता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है, विच इज के एफ इंटू एमपी. एमपी यहाँ पे क्या था? एम टी के का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. और एम टी के क्या था? मेरे मैसेज सिग्नल का अप्रोक्सीमेटेड एम्पलीट्यूड. अप्रोक्सीमेटेड एम्पलीट्यूड. ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटेड एम्पलीट्यूड यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि पूरे सिग्नल में यही मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था. एंड आई ऑलरेडी नो दैट फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है? के एफ इंटू वीएम. और वीएम क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ माई मैसेज सिग्नल. सो आई कैन से दैट के एफ इंटू एमपी इज इक्वल टू डेल्टा एफ. ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे के एफ इंटू एमपी को लेस देन 1 रखा, यानी कि नैरो बैंड इक्वेशन की कंडीशन रखी, तो आई सॉ दैट माय बैंडविड्थ बिकम्स इक्वल्स टू 4b. बट एक्चुअली नैरो बैंड एफएम के केस में बैंडविड्थ क्या होती है? 2b. तो यहाँ पे हमें एक और अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, जो कि कहेगा कि बैंडविड्थ जो है दैट इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस 2b. इंस्टेड इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस बी. और ये अप्रोक्सीमेशन मैंने कैसे किया? देखो, वाइड बैंड को तो मैं मान के चल रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ, लेकिन नैरो बैंड का इक्वेशन मुझे क्लियरली पता है. तो मैंने जो मुझे क्लियरली पता है उसकी वैल्यू के हिसाब से ये अप्रोक्सीमेशन किया. ठीक है, तो अब अगर मैं डेल्टा एफ का वैल्यू लेस देन 1 पुट करती हूँ, तो मेरे पास जो बैंडविड्थ आता है दैट इज 2b, विच इज इक्वल टू नैरो बैंड एफएम बैंडविड्थ. ठीक, तो इस इक्वेशन को, इस अप्रोक्सीमेशन को नाम दिया गया था कार्सन रूल. कार्सन रूल. Carson was a scientist who approximated this equation, and he said that the bandwidth should be equal to twice of deviation plus bandwidth of message signal. ठीक है, this is a small equation which can be used for 2 marks numericals in the paper. ठीक है, अब इसके बाद आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट इज, जैसे हमने वाइड बैंड नैरो बैंड के केस में सिंगल टोन किया था, ऐसे ही अब हम वाइड बैंड के केस में सिंगल टोन करें कि कैसे हम अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे व्हेन इट इज अ सिंगल टोन सिग्नल. ठीक है, क्योंकि अब देखो, ये जो सिग्नल है वाइड बैंड, ये इनफाइनाइट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको अप्रोक्सीमेशंस करने पड़ेंगे, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व इट. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेट मैसेज सिग्नल इज इक्वल्स टू am cos ऑफ ओमेगा mt. am भी ले सकते हो, vm भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है.
ठीक है, तो AT क्या होता है? Integration of MT dt. So I'll be putting this value under the integral and solving it. So what will I get? मुझे आउटपुट पे मिलेगा AM अपॉन ओमेगा M साइन ऑफ ओमेगा M T. ठीक है, अब इसको मैं कहाँ पुट करूंगी? इसको मैं FM की इक्वेशन में पुट करूंगी. V of FMT is what? V of FMT is A cos of omega CT x. A cos of omega CT plus KF integral of MT dt. ठीक है, so we'll put this value A cos of omega CT plus KF into M upon omega M sin of omega MT. ठीक है, we know that this is equivalent to what? Beta modulation index. So now I'll be writing it as A cos of omega CT plus B sin of omega MT. Now cos A cos B, we already know it is what? Cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. ठीक है, expand करके we'll get this equation. Now in this equation there are two terms which are not easy to plot directly, and those two terms are एक तो ये, दूसरा ये. इन दोनों टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे. Cos is what? Cos is even signal. So this will be even periodic function having angular frequency omega m. Similarly, ये क्या हो जाएगा? This will be odd periodic function having angular frequency omega m. ठीक है. Now to expand these two equations, these periodic functions, even and odd periodic functions, हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सपेंशन लेंगे. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये इनफाइनाइट सिग्नल है और इनफाइनाइट सिग्नल को एक्सपैंड करने के लिए आपको कोई ना कोई फॉर्मूला या कोई ना कोई टेक्निक लेनी पड़ती है. ठीक है, सो हियर वी विल बी टेकिंग बेसल फंक्शन. बेसल फंक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड. ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि कोफिशिएंट के टर्म्स में लिखा जाता है, और वो कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है जे एन बीटा. बीटा यहाँ पे जो भी आपका कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे हम किसको एक्सपैंड कर रहे हैं? बीटा को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो बीटा मेरे लिए कोफिशिएंट हो गया. तो जे एन बीटा इज इक्वल टू submission of m is equals to 0 to infinity minus 1 to the power m beta by 2 की power n plus 2m upon m factorial n plus m factorial. ठीक है, दिस इज माय जे बेसल फंक्शन का जो कंपोनेंट है. ठीक है, व्हाट मतलब ये बेसल फंक्शन है. इस फंक्शन को यूज करके मैं अपनी इक्वेशन को एक्सपैंड करूंगी, एंड दैट विल बी रिटन एज इन पीरियोडिक फंक्शंस, in odd and even periodic functions like this ways. Cos of beta sin omega mt is equivalent to, cos क्या था? इवन था, तो यहाँ पे सारे इवन कंपोनेंट्स होंगे इंक्लूडिंग जीरो. कौन से? किसके? n के.
n के, ठीक है। तो J0 बीटा प्लस J2 बीटा twice of J2 बीटा cos of 2 omega mt plus twice of J4 beta cos of 4 omega mt plus so on till twice of Jn beta cos of n omega mt. ठीक है. Similarly, I'll be expanding sine of beta sine omega mt. It will be written as J1 of beta 2 J1 of beta sine of omega mt plus 2 J3 of beta sine of 3 omega mt plus 2 J5 of beta sine of 5 omega mt plus so on till 2 Jn minus 1 of beta sine of n minus 1 omega mt. ठीक है. मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगी तो my VFMT can be written in the form of Bessel function as a summation of n is equals to minus infinity to infinity Jn of beta cos of omega c plus n omega m t. ठीक है. ये हमारा when we talk about single tone wideband FM, तो हम अपने इक्वेशन को बेसल फंक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. So now my wideband FM equation will be this when single tone applies here. So VFMT is equals to a summation of n is equals to minus infinity to infinity Jn beta cos of omega c plus n omega mt. Now when I put n is equivalent to 0 here, तो क्या होगा? ये J0 बीटा हो जाएगा. This will be cos omega c plus 0 यानी कि क्या बचेगा? J0 बीटा into cos of omega ct, which is what? Which is unmodulated carrier. ठीक है. और जब मैं n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखती चली जाऊंगी, ठीक, सो आई गेट वेरियस साइड बैंड्स. ठीक है. कौन सी कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी पे? ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम पे, ओमेगा सी प्लस माइनस 2 ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस माइनस 3 ओमेगा एम एंड सो ऑन टिल ओमेगा सी प्लस माइनस एन ओमेगा. ठीक. तो जब मैंने ये बेसल फंक्शन को प्लॉट करते हैं, जब हम किसके अकॉर्डिंग? जो मैंने आपको बेसल फंक्शन का इक्वेशन बताया था, ये वाला. मैं इस इक्वेशन में n और बीटा की वैल्यूज पुट करती हूं, तो जो मुझे आउटपुट मिलता है दैट इज फंक्शन लाइक दिस एज प्लॉटेड हियर. ये बेसल फंक्शन प्लॉट करने का तरीका होता है. ठीक है. यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप अपने n के वैल्यू को बढ़ा रहे हो, Jn बीटा का वैल्यू कम होता है. कैसे? देखो, जब आपने n को 0 पुट किया तो J0 बीटा कहां से शुरू हुआ? यहां से, एंड इट इज द हाईएस्ट पीक. ठीक है. बट जैसे ही आपने n को 1 पुट किया, ये कम हो गया. 2 पुट किया और कम हो गया. 3 पुट किया और 4 पुट किया और एंड सो ऑन. सो एज द n increases for different modulation index values, Jn beta decreases. ठीक है. अब इन्हीं सब कंडीशंस पे बेस्ड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं बेसल फंक्शन की, जो जनरली पूछी जाती हैं पेपर में for 2 marks somehow, or sometimes the question is like give the properties of Bessel function and then expand the wideband FM equation with the help of Bessel function. ठीक है. सो हमारे पास जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो ये कहती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास Jn of beta is equal to J minus n of beta
फॉर ऑल n, फॉर ऑल इवन n। जब आप n को इवन पुट करोगे तो एक्चुअली जे एन बीटा जे माइनस एन बीटा के बराबर हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन में n की जगह सीधा माइनस एन पुट कर दो तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। ऑल्सो जे एन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू माइनस जे ऑफ माइनस एन बीटा फॉर ऑल n इक्वल इन टू ऑड। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे फूरियर की प्रॉपर्टी होती है, लैपलास की प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे आपकी ये प्रॉपर्टीज होती है जो ऑलरेडी प्रूव्ड होती है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब जब बीटा का वैल्यू बहुत कम होगा, ठीक है, तो जो जे नॉट बीटा है इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, जे वन बीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा बाई 2 एंड हाँ कोई कुछ कह रहा है, एंड जे एन बीटा विल बी 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। जब जब n का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा इट विल बी 0, 0 और 1 के लिए इट विल बी 1 एंड बीटा बाई 2। दैट्स इट। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको कि सबमिशन ऑफ n इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जे एन स्क्वायर ऑफ बीटा विल बी 1। यानी कि अगर मैं अपने बेसल फंक्शन का स्क्वायर करूंगी तो वो 1 होगा। तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। बेसल फंक्शन का स्क्वायर 1 होता है। जब इवन नंबर ऑफ एन्स होते हैं तो बेसल फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जे माइनस एन, और जब ऑड होते हैं तो माइनस जे ऑफ माइनस एन। ठीक है, ये बराबर होते हैं। मतलब जब इवन होगा तो जे एन बीटा और जे माइनस एन बीटा सेम होंगे, जब ऑड होगा तो ये सेम नहीं होंगे, ये एक दूसरे के माइनस वैल्यू के कंपैरेबल होंगे। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि जब आप बीटा 1 लेस देन 1 रखते हो, यानी कि नैरो बैंड एफएम का केस जब हम पुट करते हैं तो J0 बीटा 1 होता है, J1 बाई बीटा बीटा बाई 2 होता है, और बाकी सारी वैल्यूज J होता कि 0 होती है। और यही होता है हमारे पास नैरो बैंड एफएम के केस में, एक कैरियर होता है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है, और कोई साइड बैंड नहीं होता। सिर्फ तीन ही चीजें होती हैं, कैरियर, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। ठीक है, लेकिन वाइड बैंड के केस में सब कुछ होता है, बहुत सारे साइड बैंड्स होते हैं। So this is all about narrow band and wide band. एक छोटा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं इन दोनों का। डिफरेंस this is wide band FM, this is narrow band. See, देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ। Whenever you are asked a difference of two technologies in 2 marks, then you minimum have to write 5 points, 5 or 4 points. Then you will get full marks. And if the difference is of more than 5 marks, then you have to put 8 to 10 points. ठीक है। अब ये पॉइंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? कहीं पे रिटर्न नहीं होंगे। जो आप थ्योरी पढ़ते हैं थ्योरी क्लास में या बुक्स के थ्रू, उसी में से आपको ये डिफरेंस नजर आने चाहिए। यू शुड बाय योरसेल्फ एबल टू राइट द डिफरेंस। ठीक है। जैसे अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस बनाएं तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि वाइड बैंड एफएम के केस में बीटा का वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 1 होता है, नैरो बैंड के एफएम के केस में बीटा का वैल्यू मच मच लेस देन 1 होता है। ठीक है। सेकेंड डिफरेंस अब मैं आपको 3 टेक्निकल डिफरेंस बताऊंगी, उसके बाद हम थ्योरी में से डिफरेंस ढूंढेंगे। टेक्निकल डिफरेंस ये कहता है क्योंकि इसका बीटा का वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डेविएशन होता है फ्रीक्वेंसी का, उसका मैक्सिमम डेविएशन वैल्यू होता है 75 किलोहर्ट्ज टेक्निकली। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है। और नैरो बैंड एफएम के केस में यही वैल्यू हो जाता है 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि आपके पास जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी एफएम, उसका जो रेंज होगा वाइड बैंड एफएम के केस में, दैट विल बी 30 किलोहर्ट्ज टू, सॉरी 30 किलो नहीं, 30 हर्ट्ज, नॉट किलो, 30 हर्ट्ज टू 15 किलोहर्ट्ज।
ठीक है, यहाँ पे FM का रेंज हो जाएगा 30 हर्ट्ज टू 3 किलोहर्ट्ज, क्योंकि ये नैरो है और ये वाइड है, वेरी सिंपल। फोर्थ टेक्निकल डिफरेंस इसमें होता है, जो आपका बीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है वाइड बैंड FM में, it can move from 5 to 2500. But in the case of narrow band, because beta is less than 1, the maximum value can go till 1. इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। ये तो थे टेक्निकल डिफरेंसेस जो कैलकुलेशंस के थ्रू आते। और क्या डिफरेंस हो सकता है अगर हमें और पॉइंट्स बनाने हो तो बताइए, कोई बता पाएगा और क्या डिफरेंसेस होते हैं हमारे पास इसमें? एक तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कितना बैंड होता है हमारे पास, कितने चैनल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसमें आप वाइड बैंड एफएम को बेसल फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, नैरो बैंड एफएम को बेसल फंक्शन से रिप्रेजेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। कार्सन रूल का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। वाइड बैंड एफएम की बैंडविड्थ 2b होती है, नैरो बैंड एफएम की वाइड बैंड एफएम की बैंडविड्थ होती है ये, और वाइड बैंड इसकी नैरो बैंड की होती है ये, ठीक है। और भी इस तरीके से आप थ्योरी में डिफरेंसेस ढूंढेंगे। एक होती है आपकी डेफिनेशन डिफरेंस, डिफाइन कर दो, इंग्लिश में डेफिनेशन लिख दो कि वाइड बैंड एफएम क्या है, इसका बैंड अनलिमिटेड होता है, नैरो बैंड एफएम क्या है, इसका बैंड लिमिटेड होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक 8 to 10 पॉइंट्स व्हेनेवर यू हैव टू गिव आंसर ऑफ अ 5 to 7 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक जो आपको मैंने बताया सेकेंड यूनिट में, दैट ऑल कंप्राइजेस ऑफ व्हाट इज एफएम, व्हाट इज पीएम और एफएम का बैंडविड्थ क्या होता है, दैट्स इट, ठीक है। एफएम के बैंडविड्थ से हमने देखा कि हमारे पास दो बैंड्स होते हैं, वाइड बैंड एंड नैरो बैंड। नैरो बैंड का सिंगल टोन एक्सप्रेशन क्या होता है और वाइड बैंड का सिंगल टोन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये बताया मैंने आपको। और इन दोनों की हेल्प से बैंडविड्थ क्या आती है वो होता है। नैरो बैंड एफएम की बैंडविड्थ होती है 2b और वाइड बैंड एफएम की बैंडविड्थ होती है ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस बी। इस इक्वेशन को कार्सन रूल बोला जाता है, दैट्स इट। चलिए, नाउ आई विल बी टेकिंग अटेंडेंस। राहुल पाल, प्रेजेंट मैम। ऋषभ कुमार, अभी थोड़ी देर में जागेंगे ऋषभ और फिर बोलेंगे मैम मैं आया हूँ। ऋषभ सक्सेना, ऋषित, प्रेजेंट मैम। बंसल, प्रेजेंट मैम। रोहन राजपूत, रोहित चौधरी, प्रेजेंट मैम। रोहित कुमार सिंह, यस मैम। साक्षी गुप्ता, Present, ma'am. साक्षी वर्मा, Present, ma'am. मीर सैफी, यस मैम। प्राची पहुजा, Present, ma'am. संदेश, सत्यम, प्रेजेंट मैम। सत्यम सिंह, प्रेजेंट मैम। रम्या सिंह, सौरभ सर, प्रेजेंट मैम। शैलेश, शानिग्ध, प्रेजेंट मैम। अंतनु, शाकिब, प्रेजेंट मैम। शिखर चौधरी, यस मैम। शिवम गुप्ता, प्रेजेंट मैम। शिवम वर्मा, प्रेजेंट मैम। अंगी सिंह, प्रेजेंट मैम। शिवांकी, Present, ma'am. श्रेय भारद्वाज, श्रुति सिंह, प्रेजेंट मैम। श्रुति सिंह, Present, ma'am. Present, ma'am. शुभ, Present, ma'am. शुभम राज, प्रेजेंट मैम।
Present, ma'am. सिद्धांत बंसल, Present, ma'am. पार्थ, स्पर्श, प्रांश, Present, ma'am. गणेश, Present. Present, ma'am. Present. तान्या ओझा, तान्या परवाल, Present, ma'am. प्रताप, Present, ma'am. तुषार तेगवानी, तुषार तेगवानी, उज्जवल, उज्जवल, Present, ma'am. उज्जवल राणा, Present, ma'am. उज्जवल शुक्ला, Present, ma'am. उज्जवल त्रिपाठी, Present, ma'am. मैम तुषार प्रेजेंट है मैम, उसकी मैम नेटवर्क इशू से वॉइस नहीं जा पा रही। ठीक है, उमेश पाल, Present, ma'am. हर्ष गोयल, Present, ma'am. उत्कर्ष चौधरी, उत्कर्ष राजपूत, Present, ma'am. हर्ष श्रीवास्तव, Present, ma'am. पटेल, Present, ma'am. अंश मिश्रा, वर्तिका, Present, ma'am. हम उसका माइक वंश का माइक खराब है। ललित शर्मा, Yes, ma'am. वृति, Present, ma'am. यश सूरी, Present, ma'am. यश यादव, यश द्विवेदी, Present, ma'am. शर्मा, Present, ma'am. कृति जायसवाल, Present, ma'am. सागर शर्मा, सागर, मैम ऋषभ सक्सेना प्रेजेंट मैम। कौन? ऋषभ सक्सेना मैम। लोगों को हमेशा लास्ट में क्यों याद आती है अपनी अटेंडेंस? जब तुम्हारा रोल कॉल निकल जाता है बिल्कुल लास्ट में तुम लोगों को पता चलता है अटेंडेंस हो रही है। मैम ऋषभ कुमार भी। हाँ, ऋषभ कुमार का तो मुझे पता ही है, लास्ट में बोलेंगे आप, या फिर नहीं बोलेंगे मैम अपने आप देख के लगा देंगे अटेंडेंस। सिर्फ बैठना मैम सक्सेना, मैम सक्सेना। अगली बार से अगर सेम नाम रिपीट हुए मैं एब्सेंट लगाऊंगी, मैं बता दे रही हूँ। सो प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास। मैम सागर शर्मा लगा दी। हाँ, लगा दिया सागर। चलिए, यू ऑल कैन लीव एंड गो टू अनदर क्लास।